Hello students, welcome back to our YouTube channel, Sigma Classes. So today we are going to continue our topic polynomials. So yesterday we learned about the relation between zeros and coefficients of a quadratic polynomial and a cubic polynomial, and also we discussed some questions related to them. And also we saw some questions that was asked in board exam. So we are going to continue our practice based on that topic. So we have a question here. Let me write down a question. It's a good question and it has been asked in the CBSE exam as well. So the question says that if the sum of zeros of the quadratic polynomial 3x square minus kx plus 6 is 3, find k. देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इस पॉलिनोमियल की जितने भी जीरोस हैं उन दोनों जीरोस का सम 3 है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. यस्टरडे समवन कमेंटेड कि हिंदी में पढ़ाओ सर. चलो मैं ट्राई करूंगा. आई विल ट्राई. ठीक है. But the primary language is going to be English. Okay, though my vernacular language is Hindi, but while teaching, during teaching, I prefer English. All right, let's compare this equation. Let's compare this polynomial with the standard form. Ax square plus bx plus c, and we'll get a value of a as 3, b as minus k, and c will be equals to 6. So sum of the zeros will be what? If I assume alpha and beta are the zeros, so sum of zeros will be what? That is given by minus b upon a. ठीक है. तो minus of minus k divided by a कितना है? 3. Now sum of zeros is already given to b. Sum is already given to b is as 3. If the sum of the zeros is 3. So I'm going to replace alpha plus beta or sum of zeros as 3. So minus minus will be plus. So k will be equals to 9. That's how you will solve this question. Okay, 2 number में आएगा आंसर ये question. काफी easy था. I believe it's clear for all of you. Now the next question we have, that is again a board question. बोर्ड में सब पूछे गए हैं क्वेश्चन, वही आप लोगों को मैं करा रहा हूँ. काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है. ओके, द क्वेश्चन सेज दैट देखो अल्फा बीटा आर द जीरोस आर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. इनफैक्ट इट डजंट से दैट कि अल्फा बीटा, इट सेज दैट इफ one zero of this polynomial or one zero of the polynomial k minus 1 x square minus 10x plus 3 is reciprocal of the other. Find k. ये बोला गया है. बहुत सिंपल है. देखो इस पॉलिनोमियल की एक जीरो दूसरी जीरो का रेसिप्रोकल है. रेसिप्रोकल वी ऑल नो दैट व्हाट इज रेसिप्रोकल. सो फाइंड, वी नीड टू फाइंड के. सो आई अज्यूम लेट द जीरोस आर अल्फा एंड बीटा. कुछ भी मान सकते हैं हम क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम देयर विल बी टू जीरोस. सो लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस. ठीक है, आर द जीरोस. अकॉर्डिंग टू द रिलेशन इट इज गिवन दैट वन जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर. यानी ये जो सेकंड जीरो है बीटा वो अल्फा का रेसिप्रोकल है. इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस इन द क्वेश्चन. ठीक है, रिलेशन बिटवीन द जीरोस इज ऑलरेडी गिवन. बीटा इक्वल्स टू 1 by अल्फा. नाउ वी नीड टू फाइंड k. नाउ वन थिंग इज फॉर श्योर फ्रॉम हियर, वी कैन सी if I multiply alpha and beta, alpha and beta I will replace beta with 1 by alpha, so alpha into 1 upon alpha will be 1. So if I multiply them or if I find their product, I can easily say that their product will be 1. है ना? Let's do this and that will be clear to you. Alpha beta is given by c upon a. So I'm going to replace beta with 1 upon alpha. क्यों? क्योंकि already given में question में given है तो I'm just going to replace it. c कितना है मेरा? Let's compare it with the standard form. c है 3. a क्या है? a is k minus 1. देखो a क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो. तो k minus 1 पूरा मल्टीप्लिकेशन में x स्क्वायर के साथ. So that's why a is k minus 1. ठीक है, so that will be cancel out. We'll have 1 here. 1 equals to 3 upon k minus 1. Do the cross multiplication. That will be equals to k minus 1 equals to 3. So from here we'll get the value of k as 4. I hope this is clear to all of you. So easy, so simple. Now बहुत simple है और नहीं समझ में आता तो you can just write in the comment section as well. Or you can directly contact me. I always provide a mail to you.
द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये वाला करते हैं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इट सेज दैट, देखो लैंग्वेज से खेल गया है, ठीक है, और ये सीबीएसई 2022-23 में है, ध्यान से देखना। इट सेज दैट इफ, मैं इस क्वेश्चन को पूरा लिखूंगा, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x square plus px plus q are double in value to the zeros of the polynomial 2x square minus 5x minus 3, find the values of p and q। ये कहा गया है हमसे क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। देखो हमारे पास यहाँ पर दो पॉलिनोमियल है, हमारे पास यहाँ पर दो पॉलिनोमियल है, पहला तो x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और दूसरा हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। इट इज गिवन दैट इन दिस क्वेश्चन कि ये जो पहले वाला पॉलिनोमियल है इसकी जो जीरोस हैं वो दूसरे वाले पॉलिनोमियल की जो जीरोस हैं उनका डबल है, यानी वैल्यूज में डबल है। अगर मैं कहूं कि इफ आई से कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, सो जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसकी जो जीरोस होंगी वो डबल होंगी सेकंड वाली पॉलिनोमियल की जीरोस की, यानी 2 alpha and 2 beta will be the zeros of the first polynomial. I hope this is clear to all of you. Now we are asked to find out the value of p and q. So हम कुछ नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में फिलहाल, डायरेक्टली p और q की वैल्यू तो हम नहीं निकाल सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, we just need to solve it। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, अल्फा और बीटा मुझे मालूम है जीरोस है सेकंड पॉलिनोमियल की, तो मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज निकाल ही लेता हूँ, क्योंकि ये तो हमने देखा हर क्वेश्चन में लगातार हम इनको ही निकाल रहे हैं, तो निकाल लेते हैं। तो इट विल बी गिवन बाय माइनस ऑफ बी अपॉन ए, तो माइनस ऑफ माइनस 5, माइनस ऑफ बी ना, बी माइनस 5 है, डिवाइडेड बाय 2, सो दैट कम्स आउट टू बी 5 अपॉन 2। अल्फा बीटा भी निकाल लेते हैं लगे हाथों, तो दैट विल बी इक्वल्स टू सी अपॉन ए, तो माइनस 3 अपॉन 2, सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा। नाउ यहाँ पर फर्स्ट पॉलिनोमियल के लिए हम बात करते हैं, भाई जीरोस हैं 2 अल्फा और 2 बीटा, तो दोनों जीरोस का सम यानी 2 अल्फा और जब 2 बीटा को ऐड करेंगे तो ये कितना आना चाहिए हमारा, दैट शुड बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर बी है पी, तो माइनस के पी डिवाइडेड बाय ए कितना है, 1 है। तो यहाँ पर आप देखो तो 2 कॉमन है, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा ये ब्रैकेट में आ जाएगा। नाउ आई ऑलरेडी गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दैट्स 2 इंटू 5 अपॉन 2। I'm just putting that value here, 2 will get cancel out, so 5 equals to minus p, p आ गया हमारे पास माइनस 5 भाई, देख लो p आ चुका है माइनस 5, हो गया नहीं, बहुत सिंपल था ये भी। नाउ द नेक्स्ट वन, प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं हम लगे आते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट रूट इज विल बी गिवन बाय 2 अल्फा into 2 beta, 2 alpha into 2 beta will be what, that will be given by c upon a, c is q upon 1, so 4 alpha beta will be equals to q। Now we are just going to put the value of alpha beta as minus 3 upon 2, minus 3 upon 2 equals to q। Now 2 will get cancelled out, 2 to the 4, now 2 into minus 3, that will be minus 6, so I got the value of q as minus 6। I hope this is clear to all of you। All right, class. So now let's do another question. We are going to solve another question that is also from the boards. बोर्ड्स में लेवल देखिए आप, काफी अच्छा लेवल आता है क्वेश्चंस का, ऐसा नहीं है कि अभी बहुत लोग कहते हैं कि अब तो बहुत हल्के हो चुके हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर आपको कुछ आता नहीं है तो आपको वो हल्के भी नहीं होंगे, ये गारंटेड है, ठीक है। तो करना आपको ही को है, अभी से प्रैक्टिस करो तो ज्यादा बेहतर है। Now let's do another question. The question says that, देखो, the question says that, let me write down that question. If alpha and beta are the zeros of this polynomial, just mind my writing. Writing थोड़ी ignore करना, जो मेन चीज है वो तो मैं साफ लिखता हूँ, बाकी जो लैंग्वेज वगैरह है वो उसका ध्यान रखना अपने आप। के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, दिस इज अवर पॉलिनोमियल such that कि alpha square plus beta square is given as 25। We are asked to find out the value of k, हमें k की वैल्यू निकालने के लिए कहा है। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी, लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व इट, देखते हैं।
देखो भाई अल्फा बीटा अगर इसकी जीरोस हैं तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज गोइंग टू बी व्हाट माइनस बी अपॉन ए, सो माइनस 4 अपॉन के. अल्फा बीटा इज गोइंग टू बी व्हाट 4 upon k. C upon a होता है तो 4 upon k. C is 4 here. Now alpha square plus beta square is given to us as 24 because with the help of alpha plus beta and alpha beta we cannot find out the value of minus 4 k. We cannot find out the value of k. So it means if it is given to us then we have to use it somehow. See, we had the term here, alpha square and beta square, and that term comes in the identities. If I take this, the square identities, like alpha plus beta whole square. So let's write that identity here, alpha square plus beta square plus 2 alpha beta. I'm going to put all the values which I have here. Alpha plus beta, I found it's minus 4 upon k. Let's put that here. Alpha square plus beta square is already given to me as 24 plus 2 into alpha beta, that's 4 upon k. Okay, so now it's going to be 16 upon k square equals to 24 plus 8 upon k. Okay, now take this 8 upon k on the left hand side and just try to solve it. Minus 8 upon k equals 24. LCM is going to be k square. 16 minus 8k equals 24. We all know how to do the calculation. हर बार मैं calculation नहीं बताऊंगा क्योंकि it will consume time, है ना? It takes a lot of time. If I just explain the calculations to you, it takes a lot of time, and I assume that you are in 10th standard, so you all are well versed with the calculation part. To the cross multiplication, 16 minus 8k is equals to 24k square. Just take all the values on the left hand side or right hand side. So I'm going to get the equation as 24k square plus 8k minus 16 equals 0. 8 common hai. Let me divide each and every term by 8 on both the sides. So I'm going to get the equation as, देखो 8 common लेके काट दिया, कोई confuse मत होना बिल्कुल भी, ठीक है? 3k square. चलो एक स्टेप फालतू लिख ही देता हूँ और ना confuse हो जाओगे खाना खा. So 3k square plus k minus 2 equals 0. अब ये मत पूछना कि ये कैसे लिखा. अरे भाई 8 को मैं right hand side ले गया, 0 upon 8 will be 0. Now we have to solve it. We have to solve it by using splitting the middle term method. ये आप खुद करेंगे बस, ठीक है? k की वैल्यूज कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे सॉल्व करने के बाद. This is your homework. You have to solve this equation by yourself. Now let me teach you another topic, that is how to frame a quadratic polynomial if sum of zeros and product of zeros are given to us. Not question, it's a topic name. How to frame a quadratic polynomial. एक quadratic polynomial कैसे बनाएं अगर हमें sum of zeros और product of zeros given है तो. बड़ा इजी है, ध्यान से देखेंगे. सिंपल फॉर्मूला है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. और x की जगह आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, a b c जो आपकी इच्छा हो. तो if we are given the sum of zeros and product of zeros, we can easily frame any quadratic polynomial. Let's do a question about it. The question says that, wait a second, find a quadratic polynomial whose zeros are minus 9 upon 2 and minus 3 upon 2. Let me write down this. हमें एक quadratic polynomial बनाना है, zeros are minus 9 upon 2 and minus 3 upon 2. Frame a quadratic polynomial. Find a quadratic polynomial. ठीक है? So we are given the zeros. Let's find out the sum of the zeros. Sum of zeros कैसे निकालेंगे? सिंपल है, दोनों zeros को ऐड कर दो. Minus 9 upon 2, minus 3 upon 2, minus 12 upon 2, that's going to be minus 6. Then product of zeros निकाल लेते हैं. कितना आएगा? बहुत सिंपल है. Product of zeros is going to be minus 9 upon 2 into minus 3 upon 2. 9 3 is 27. Minus 9 into minus 3, that will be plus 27 upon 4. So now required polynomial क्या हो जाएगा हमारा? Required polynomial is going to be, required polynomial कैसे निकालेंगे? x square minus sum of zeros. Sum of zeros कितना है? minus 6. Wait a second. हाँ, minus 6 into x plus product of zeros कितना है? 27 upon 4. x square plus 6x
प्लस 27/4। आप इसको ऐसे चाहे ऐसे छोड़ सकते हैं, या फिर जनरली हम एलसीएम वगैरह लेकर के इसको 1/4 कॉमन लेके और ब्रैकेट में जो भी आएगा वही हमारा पॉलिनोमियल होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे आप चाहे तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। So that will be the required polynomial. I hope this is clear to all of you. बड़ा इजी था ये। अब नाउ हम थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं एक। The question says that find a quadratic polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial ax square plus bx plus c। यानी हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी जीरोस हमारे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोस का रेसिप्रोकल है। हमें ये बताना है। ठीक है। आई एज्यूम कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैं इसकी ये जीरोस मान करके चलता हूँ। ये भी बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से देखना कैसे होगा ये। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हम निकाल लेते हैं सेकंड पॉलिनोमियल के लिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए? इट शुड बी माइनस बी अपॉन ए, ये वाली टर्म डिवाइडेड बाय ए। ओके, जस्ट नेगेटिव ऑफ दैट टर्म। अल्फा बीटा क्या होना चाहिए? लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय आई मीन कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सी अपॉन ए। वी गॉट दिस वैल्यूज। नाउ जो हमें पॉलिनोमियल बनाना है न्यू पॉलिनोमियल, उसके जीरोस क्या है? न्यू पॉलिनोमियल जीरोस क्या है? रेसिप्रोकल है जो हमारा सेकंड पॉलिनोमियल है इसकी जीरोस की। तो न्यू पॉलिनोमियल जीरोस क्या होगी? न्यू पॉलिनोमियल जीरोस क्या होगी भाई? इसकी अल्फा बीटा, इसके रेसिप्रोकल क्या हो जाएंगे? 1 upon अल्फा एंड 1 upon बीटा। दीज आर द टू जीरोस ऑफ द सेकंड जो न्यू पॉलिनोमियल वी नीड टू फ्रेम, है ना? जो पॉलिनोमियल हमें फ्रेम करना है उसकी जीरोस क्या होंगी? 1 upon अल्फा और 1 upon बीटा होंगी। तो इस केस में हमें नए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? हमें वी रिक्वायर द सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम क्या होगा यहाँ पर? सम क्या होगा यहाँ पर? 1 upon अल्फा प्लस 1 upon बीटा। निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा इज गोइंग टू बी द एलसीएम, बीटा प्लस अल्फा। तो आई ऑलरेडी गॉट द वैल्यू ऑफ बीटा प्लस अल्फा। क्या आई वैल्यू? माइनस बी अपॉन ए। लेट्स पुट दैट वैल्यू हियर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा कितना आया? सी अपॉन ए आया। तो ए से ए कैंसिल, तो आई गॉट माइनस बी अपॉन सी। जिनको ये समझ में नहीं आया ए से ए कैंसिल कैसे हुआ, ध्यान से देखना। अगर कोई नंबर कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं पी अपॉन क्यू अपॉन आर अपॉन एस, तो पी की एस से मल्टीप्लाई, क्यू की आर से मल्टीप्लाई। ये ऐसे होता है, दो फ्रैक्शन को हम डिवाइड इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही किया। और नीचे वाले डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से हम काट सकते हैं अगर कर रहे हैं तो। नाउ प्रोडक्ट क्या होगा? 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। ये तो होगा ना सेकंड वाले पॉलिनोमियल के लिए। तो 1 अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना है हमारा? सी अपॉन ए। तो 1 अपॉन सी अपॉन ए। तो 1 अपॉन रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल क्या होगा? ए अपॉन सी होगा, बस सिंपल। ए अपॉन सी। I got the sum and product. Required polynomial क्या हो जाएगा? Required polynomial will be what? Required polynomial will be what? भाई फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो। सम कितना है? माइनस बी अपॉन सी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है? ए अपॉन सी। सो आई गॉट एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी, दैट्स बी अपॉन सी, इट्स नॉट 6, इट्स बी अपॉन सी एक्स plus a upon c. This will be the required polynomial. I hope this is clear to all of you. So that's it for today. आज के लिए इतना काफी है। अब तो मैं थक भी गया हूँ, अब आगे नहीं पढ़ाऊंगा। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, कमेंट वगैरह में डाल देना। I'll get back to you. और I should say कि किसी को एडिटिंग वगैरह आती हो तो वो मुझे बता दे। अगर नहीं भी आती तो मैं सिखा दूंगा। लेकिन मतलब मुझे वीडियोस कुछ एडिट करानी है, थोड़ा टाइम नहीं रहता मेरे पास और इसलिए नहीं कर पाता हूँ मैं। बाकी अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो हैव अ नाइस डे। आई एम गोइंग टू एंड द क्लास नाउ। कोई क्वेरी आती है तो पूछ सकते हैं आप सभी कमेंट बॉक्स में।